A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Diva Vadwani, your economics teacher. Today we'll be solving specimen paper of economics for class 12 ISC, जिसका आज हम लोग part 3 पढ़ेंगे. The questions that were done from section B, and we'll be starting here from question number 6. So question number 6 says that a firm under perfect competition is a price taker, but the industry is said to be a price maker. You have to defend or refute this statement by giving a reason. Means या तो आप उसके फेवर में हो या तो आप उसको मना कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में हो, and you have to tell one reason for it. That is the part 1 of it, question number 6. So इसका solution is given in the answer key itself, मतलब same question में ही दिया हुआ है. तो the answer says that price of the commodity is determined by the interaction of market demand and market supply. Price is determined by not an individual demand but market demand and market supply. So market or industry is the price maker, but no individual firm पर कोई भी individual firm जो है या किसी भी इंडस्ट्री के अंडर वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो शेयर है इन द मार्केट वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है. मतलब एंटायर इंडस्ट्री कैन चेंज द प्राइस, बट अगर उसका एक हिस्सा एक फर्म है जिसका इतना सा हिस्सा सिर्फ मार्केट शेयर में आता है तो वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है. इट ओनली हैज़ टू एक्सेप्ट जो भी मार्केट डिटरमिन्ड प्राइस है, एंड द फर्म हैज़ टू सेल एनी अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस ओनली. तो फर्म हमेशा एक प्राइस टेकर होता है, एंड सो दिस स्टेटमेंट इज़ डिफेंडेड कि हाँ ठीक है, हम बिल्कुल इस स्टेटमेंट के फेवर में है कि जो इंडस्ट्री होती है दैट इज़ अ प्राइस मेकर बट फर्म इज़ ऑलवेज अ प्राइस टेकर. तो यू हैव टू मतलब द कैंडिडेट्स हैव टू अग्री और डिसअग्री, एंड दे हैव टू टेल द वैलिड रीजन फॉर इट. देन the next part of the question says that normal profits of a firm imply that the firm is breaking even, मतलब कि जो firm है वो break even point पर है, ये कहता है the statement. तो statement का आंसर इज दैट येस, नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम प्रॉफिट विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजर और एंटरप्रेन्योर टू कंटिन्यू द प्रोडक्शन. दिस इज अ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म. ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट, मतलब ये एक ब्रेक नॉर्मल प्रॉफिट बताया है, ये एक ब्रेक इवन बताया है. दैट वेयर योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज नीदर लॉस नीदर प्रॉफिट इज देयर. A firm enjoys normal profit when the total revenue of the firm is enough to cover the cost, since normal profit is a part of total profit, total cost. तो कहा गया है कि yes, normal profit is the same as break even point या break even profit जहाँ पर हमारा होता है, बिकॉज वहाँ पर हमारी total revenue जो होती है वो total cost के बराबर होती है. यहाँ पर ये भी चीज़ कही गई है कि नॉर्मल प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट जो एक ऑर्गेनाइज़र को ज़रूरी होता है सो दैट वो अपनी जितनी भी कॉस्ट है उसको कवर अप कर सके. दैट इज़ वाई जो टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म है दैट शुड बी इनफ टू कवर द कॉस्ट, सिंस नॉर्मल प्रॉफिट जो पार्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ओनली. तो कैंडिडेट्स हैव टू एक्सप्लेन नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन यू हैव टू रिलेट इट विद ब्रेक इवन पॉइंट. ओके, फिर the next question, that is question number 7, says that India has been operating on a managed floating exchange rate regime since March 1993. You have to explain the statement कि what is a managed floating exchange rate and India उस पर कैसे चल रही है since March 1993. तो India has been following a flexible exchange rate system from many decades, where foreign exchange rate is determined by the forces of demand for and supply of a foreign exchange. 1993 से RBI has been intervening, means not completely, but what it is doing is purchasing and selling of foreign currencies when foreign exchange rate is very low or very high. So India is now following a managed floating exchange rate system for controlling the fluctuations of foreign exchange rate. कि अगर foreign exchange rate में फ्लक्चुएशंस होते हैं तो RBI विल इंटरवेन एंड दे विल बाय एंड सेल सिक्योरिटीज सो दैट हम उस जो एक्सचेंज रेट है उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सके. द RBI शुड मैनेज. तो दैट इज़ द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड यू हैव टू टेल दैट येस इट इज़ ट्रू कि हाँ RBI जो है फ्रॉम दिस टाइम बीइंग वो उसको मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पर इंडिया चल रहा है. हाउ इट इज़ वर्किंग और हाउ RBI इज़ डूइंग दैट थ्रू purchase and sale of foreign secure currencies. Okay, फिर the next question that is asked here
is you have to list the different components of balance of payment. current account और capital account में balance of payment के जो components होते हैं that are supposed to be told. सिर्फ points ही बताने उसके, you have to list it, no explanation is required. सबसे पहले इस current account, तो goods and export and import of goods, export and import of services, unilateral transfer, receipts and transfer payments, and then income receipts and income payments. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे टर्म किया गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर. देन components of capital accounts, capital receipts and capital payments, या फिर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ रीज़न दैट वाई द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्यों जोड़ा गया. सबसे पहले दिया गया गुड्स सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट द्वारा जो गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में, एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर बोला गया. तो वाई, तो सबसे पहले गुड्स सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. वाई? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका हिस्सा है ये, इसीलिए इसको इसमें जोड़ा जाता है. क्या चीज़? जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड गुड्स होते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले. एंड सेकेंड इज दैट ओन अकाउंट प्रोडक्शन, तो उसको जोड़ा गया है यहाँ पर बिकॉज इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पोर्शन ऑफ करंट प्रोडक्शन ऑफ द इकॉनमी. क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन में इसको इंक्लूड किया गया है, नॉट टू बी रीसोल्ड बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इकॉनमी, इसीलिए इसको हम लोग ने इसमें जोड़ा गया है. ठीक है, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज outline two precautions that should be taken in the estimation of national income by expenditure method. अगर expenditure method से हम लोग national income calculate कर रहे हैं, estimate कर रहे हैं, तो उस टाइम पर what things should be kept in mind. First thing is कि all final products irrespective of whether these are marketed or not to be included. जितने final products हैं whether marketed or not should be included in this. What things to be excluded? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स भी इसमें नहीं आएगा. एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन इट. So you have to mention any two precautions to be written in complete sentences, not in phrases. Any other relevant precaution can also be accepted. ठीक है, इनके अलावा भी जो भी लिखा जाएगा वो भी acceptable होगा. तो these are of 2 marks. फिर मतलब 2 marks इन द सेंस कि क्वेश्चन नंबर 8 में या तो आप ये वाला कर लो A और B, या फिर ये वाला कर लो 1 and 2. देन नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम. तो पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम. पर्सनल इनकम इज द इनकम विच एन इंडिविजुअल एक्चुअली रिसीव्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज. प्राइवेट इनकम इज द इनकम अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज. मतलब प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो इनकम मिलती है दैट इज प्राइवेट इनकम. पर्सनल इनकम इज़ द इंडिविजुअल्स इनकम जो उसको डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही होती है. तो कॉरपोरेट सेविंग्स एंड कॉरपोरेट टैक्सेस जो है वो इसमें नहीं आते. कॉरपोरेट सेविंग्स और कॉरपोरेट टैक्सेस प्राइवेट इनकम का ही पार्ट होते हैं. तो दे आर सपोज कैंडिडेट्स आर सपोज टू राइट द डिफरेंसेस ईदर इन टेबल और पैराग्राफ फॉर्म, बट ट्राई टू राइट इट इन टेबल फॉर्म ओनली. ओके, फिर नेक्स्ट इज वाई आर नेट एक्सपोर्ट्स एडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर. वाई आर नेट एक्सपोर्ट्स एडेड इन द टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स को हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर में क्यों जोड़ते हैं वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. तो द आंसर सेज दैट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपेंडिचर है बाय फॉरेनर्स ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एक्सपोर्टेड बाय द कंट्री. ठीक है, इट इज़ टू बी एडेड टू गेट द GDP बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मतलब कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला जितना भी सामान होता है वही तो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं. तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, दैट इज़ वाई हम लोग उनको जोड़ रहे होते हैं. ओके, एंड इम्पोर्ट्स जो एक्सपेंडिचर मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ऑन इम्पोर्टेड
और एंड दीज आर जो सपोज करो बाहरी कोई फॉरेन कंट्री है, तो हमारे गुड्स कहाँ से आ रहे हैं, आउटसाइड से आ रहे हैं, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दीज आर इम्पोर्ट्स, जो फॉरेन का पार्ट है. ठीक है, वी हैव डन एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, तो it should be subtracted from the total expenditure of the goods and services that are not part of the domestic production, क्योंकि वो domestic production का हिस्सा नहीं है. exports domestic production का हिस्सा है, imports नहीं है, तो that is why it cannot be a part of GDP. hence exports में से imports को हम लोग हटा करके net exports को हम लोग GDP में mention करते हैं, and hence it is a part of national income also. okay, फिर बताया गया इसमें द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बिफोर स्टार्टिंग विथ सेक्शन सी. तो इसमें बोला गया है दैट क्वेश्चन नंबर 9 विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम बाय यूजिंग द अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. मीन्स AD and AS अप्रोच के थ्रू यू हैव टू टेल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम. ओके, तो द क्वेश्चन सेज दैट सबसे पहले यू नीड टू मेंशन, मतलब इसको कैसे बताना है. सबसे पहले यू हैव टू टेल द इक्विलिब्रियम इनकम दैट रेफर्स टू द लेवल ऑफ रियल इनकम और द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच द अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई बिकम इक्वल. AS इज इक्वल टू AD, अग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू AD, दैट इज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ओके, तो उसका डायग्राम वी विल मेक दैट दिस YE is the means this is the diagram that is made. YE is the income equilibrium income, because for this level of income equilibrium condition income is equal to consumption plus investment expenditure. consumption और investment expenditure जो यहाँ शो किया गया और income जो यहाँ शो की गई है. तो this is a situation of excess demand. now if we take Y that is Y1, तो उस टाइम पर कंजम्पशन एंड इनकम इज़ ग्रेटर दैन, ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ ग्रेटर दैन द इनकम पॉइंट. ठीक है, जो कि ये वाला है, जितना सप्लाई हो रहा है उससे ज़्यादा उसकी डिमांड जा रही है, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा जा रहा है जितनी की इनकम एक्चुअल में है. दिस इज़ द एक्सेस पॉइंट जो यहाँ पर शो किया गया है. सो it will which induces producers to produce more and this leads to rise in income. तो इससे क्या होगा, producers will be induced to produce more और इसके कारण there will be rise in income till Y is equal to C and I again, that is equilibrium is restored. ठीक है, ये वाला जो है ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका. देन सेकेंड सिचुएशन में जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है कि इन केस दिस सिचुएशन इज टेकन, ये फर्स्ट वाला है. फर्स्ट रिस्टोरेशन यहाँ पर बता दिया गया था. उसके बाद द सेकेंड वन कि इन केस ये जो पार्ट है यहाँ पर इफ़ वी टेक द पॉइंट ऑफ Y2 जहाँ पर द इनकम इज मोर, द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस. तो उस टाइम पर both the situations have to be told that this is a situation of excess supply, means more income, which induces the producers to reduce the current production and this leads to fall in income till consumption and expenditure, investment expenditure, that is equilibrium is restored. Okay, so that is all for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.